Hello everybody, welcome in this channel Teach Well Education. I hope you must be learning really well and your preparations are all awesome. As you must have watched my yesterday's video, let us today start with another amazing lesson on particularly present tense. This is the 11th video of the grammar section in time and tense, and today we are formally starting the present tense. There is a lot of things to know about, but we will proceed gradually without a hurry. So let's get started. If you are new, it takes nothing, it is absolutely free. Please subscribe so that I could reach the target of live streaming, at least 50 subscribers. Don't forget to watch this video till the end because some amazing real practice are there at the end of video waiting for you. So again, the exam pattern for the lecturer, the syllabus, the definition of time and tense, how they are different, and what is tense actually, an introduction, and what we have already covered in the topic of tense as the prerequisites for tense, ways of categorizing verbs, this amazing beautiful quote. Let us start with this. Each day is a gift and that is why it is called present. प्रेजेंट मतलब उपहार होता है ना, तो हर दिन हमारा एक गिफ्ट की तरह होता है, हमें कुछ नया और अच्छा सीखने और करने का मौका मिलता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट. एंड डेफिनेटली पूरी दुनिया में जब कभी भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं. एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट. नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम किस तरीके से समझेंगे. वेरी बेसिक टू एडवांस्ड नुआंसेस, हम एकदम बेसिक से लेकर बहुत हाई लेवल की बारीकियों को समझेंगे. नुआंसेस. एलिमेंटरी फॉर्मूला, जैसा आप जानते हैं कि इसका बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला ये होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, देन वी हैव द फर्स्ट फॉर्म और द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एज दे एग्री एंड द वर्ब, and then object, and this is how we have studied. But this is just for an assertive sentence. There is something more for negative, affirmative, interrogative, exclamatory, optative, and many more. Semantics, meaning based interpretation of structures, कि एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो तो ठीक है लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लिटरल, एंड उसका टेम्पोरल मीनिंग क्या है, फिगरेटिव मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें भी हम इसी टेंस के अंदर सीखते हैं. एस्पेक्ट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड टेम्पोरल स्टेट्स, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट perfect continuous. These are all the aspects of the present tense itself. Cognitive, mental processing and logical application. What are the things that you need to memorize and what are the things that you by default will take care when you are appearing for the examination. We will practice all those kinds of things. Practice set solution. After that we will also do in the same video practice set solution. जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में एक्चुअली में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं. सो डेफिनेटली इट हैज 4 एस्पेक्ट्स विच आर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. द सेम इज फॉर द पास्ट टेंस ऑल्सो एंड फॉर द फ्यूचर टेंस ऑल्सो. Definition: when a subject exists in an action, state or condition that holds the value up to the moment of speaking. Keyword है, याद रखिएगा, moment of speaking. We utilize the present tense. प्रेजेंट टेंस का कब यूज होता है? जब हम जो कुछ भी बोल रहे हैं या कोई भी परिस्थिति हो या फिर कोई भी कंडीशन हो, वो जिस समय बोला जा रहा है उस टाइम तक के लिए रिलेवेंट हो, उस टाइम तक के लिए उसका कोई वैल्यू हो, then we use the same tense. The 4 aspects be done. Key characteristics of present tense. Each aspect covers a specific span of time and defines the subject-object relation.
तो हर एक एस्पेक्ट प्रेजेंट टेंस में वर्ब का सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से किस तरीके का रिश्ता है उसको डेफिनेटली बताता है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, आई सेड द रिलेशन ऑफ अ वर्ब विथ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। Present simple is the most frequently used tense in daily communication, as I just told you. From the Swing by R.L. Stevenson. चलिए एक छोटा सा पोयम के छोटे से 4 लाइन देखते हैं जो प्रेजेंट टेंस में है। How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue. Oh, I do think it is pleasantest thing ever a child can do. सभी के सभी जो फॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। चलिए अब यहां से पढ़ाई शुरू करते हैं। आपने एवेंजर्स मूवी जरूर देखा होगा और उसमें पर्टिकुलरली एंड गेम की ये सीरीज, और एवेंजर्स एंड गेम का जो लास्ट मूवी है उसमें फाइनली सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के बाद थैनोस बोलता है आई एम इनएविटेबल, मतलब मुझसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, मुझे होना ही था। मतलब जिसको हम भाग्य कहते हैं कि मैं ही भाग्य हूं। बट बड़ी चालाकी से उससे सारे इन्फिनिटी स्टोन को छीनने के बाद आयरन मैन कहता है एंड आई एम आयरन मैन। सो this I am inevitable is also in present tense, particularly present simple tense, and I am Iron Man ये भी present simple tense में है। So here today we are going to study on present simple tense। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं present simple tense। You must have watched many other videos where in only single video of 10 minutes they teach 4 kinds of all the aspects of present tense, that is continuous also, perfect also, perfect continuous also. Yes, they do definitely teach you some major concepts, but that is not everything on that. But in this video series my goal is always to provide you a content out of which you don't require to go anywhere else. And this is why it may be a little longer than other videos, but you will get everything. You don't require anything out of this video. You just need to do a lot of practice that is extra from this video. Verbs indicating the following cases are in the present simple tense, typically using the first form of the verb or the fifth form of the verb. So कोर यूजेज सिचुएशन, एकदम हार्ड एंड फास्ट सब तरीके से रूल रेगुलेशंस को तोड़ मरोड़ के अगर सबसे क्रक्स ऑफ द मैटर आपको बताया जाए तो इस 4 तरीके से ही आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। बाकी जितने भी आपको सिचुएशंस दिखेगा वो इन्हीं 4 के ही अदर डिराइवेटिव्स हैं, इन्हीं 4 से ही थोड़ा बहुत ट्विस्ट होके थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आए हुए हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। अब वाटर पानी चाहे यूनिवर्स में कहीं भी हो, अगर वो वाटर है, रेगुलर वाटर है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल करेगा, उबाल देगा, एंड दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हैबिचुअल एक्शंस, आई जॉग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह दौड़ता हूं। हैबिट है, हर दिन सुबह एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में होता है, एक निश्चित इंटरवल के बाद होता है। प्रेजेंट स्टेट, आई एम एट पीस बाय लूजिंग हिम, की एक स्थिति है कि मैं शांति हूं, मैं शांत हूं, मेरी स्थिति शांति में है। कैसे? उसको खोकर, उससे छुटकारा पाके। पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, यू कैन बोरो माई पेन, तुम मेरा पेन उधार ले सकते हो। तो ये 4 तरीके ही हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट्स जो फ्रीक्वेंसी डेफिनेट में होता है, या फिर प्रेजेंट स्टेटस में होता है, या पॉसिबिलिटी या एबिलिटी। इस 4 सिचुएशन पर ही हम यूज करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो यूज फॉर हिस्टोरिकल और ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स। तो जब कभी भी हमें पास्ट इवेंट को एकदम ड्रामेटिक एक्सप्रेशन के साथ कि आप उसको इमेजिन करें कि वो आपके सामने यही वो इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसा जब प्रेजेंट करना होता है तो हम उसे प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि
अंबेडकर मोबिलाइजेस पीपल, जैसे कि अंबेडकर इन 1927 organizes महार सत्याग्रह and then starts महार सत्याग्रह. Instantaneous, Messi passes to Neymar. Neymar shoots the ball and here it's a goal. देखिए सारे के सारी चीजें जो है प्रेजेंट टेंस में है ना. फ्यूचर एट इवेंट्स, जो फ्यूचर के इवेंट को बताने के लिए होता है. एग्जाम इज ऑन 29th नवंबर. एवरीवन इज रेडी. सो दिस इज अगेन, तो हमें इन सारे सिचुएशन के लिए भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना रहता है. थैनोस, आई एम इनएविटेबल. टोनी स्टार्क, आई एम आयरन मैन. These are all present tense, present simple tense. Present simple tense core uses. Let us see some more examples on those things. Universal truths. Water boils at 100 degrees. The sun rises in the east. Honey is sweet. Plants need light to grow. Gravity pulls objects down. Habitual actions. I jog in the morning. She drinks tea every day. They visit us on Saturdays. He reads before bed. We wake up at 6 a.m. By the way, reading before bed is absolutely amazing habit. अगर आप सोने से पहले पढ़ते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को सुपर चार्ज्ड लेवल पर ले जाते हैं. अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक सुपर चार्ज्ड लेवल पर ले जाकर आप ये कह देते हैं कि अब सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में यही सारी चीजें जाओ. तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी और आपका लैंग्वेज कमांड इतना जबरदस्त हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू रीड एनीथिंग जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड. एनीथिंग आई मीन टू से फ्रॉम दिस प्रिपरेशन कंटेंट. States and abilities. Present state. I am at peace by losing him. The house smells like flowers. He feels very tired today. Everything seems fine now. I know that man personally. Possibility and ability. You can borrow my pen. She speaks 3 languages. Birds fly in the sky. He swims like a fish. Computers process data fast. Narrative and future context. फिर से हम एग्जांपल्स देखेंगे. Historical and dramatic. Ambedkar mobilizes people. Caesar crosses the Rubicon. Napoleon marches on Moscow. Gandhi leads the Salt March. Lincoln signs the proclamation. Instantaneous, जो पर्टिकुलर इंस्टेंस को बताता हो. Messi passes to Neymar. Curry shoots from deep. Hamilton takes the lead. Kohli drives to boundary. Williams hits a powerful ace. Future 8 event, जो फ्यूचर में होते हैं और फिक्स्ड हो जाते हैं. Exam is on 29th of November. The train leaves at 5 p.m. Meeting starts tomorrow morning. Flight lands in 10 minutes. Concert begins this Sunday. Present simple moment of action. तो हमने फिर से वही चीज को देखा. Performance and expression, instructions and social. अब मैं आपको exactly वो moment आपको बताने जा रहा हूं जहां पर exactly हम present simple tense का use करते हैं. For an example, कमेंट्री. जब आप किसी चीज का कमेंट्री कर रहे हो, आप किसी के एक्शन को डिफाइन कर रहे हो, तो उस सिचुएशन पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहना है कि क्या छक्का लगाया. व्हाट अ सिक्सर ही स्मैशेस. डिलीवरिंग अ पंच लाइन ऑफ अ जोक. जब आपको कोई जोक मारना हो इंग्लिश में, तो उस समय आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की यूज कीजिए, मजा आ जाएगा. एक्सप्रेसिंग करेंट फीलिंग्स और ओपिनियंस. जब आप अपने प्रेजेंट में चल रहे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे जाहिर करते हैं, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना चाहिए. रिमेंबर, ये सारे सिचुएशंस में ऐसा नहीं है कि आप दूसरा टेंस यूज नहीं कर सकते, बट दीज आर स्टैंडर्ड सिचुएशंस, दीज आर फॉर्मल्स एंड दीज आर प्रोफेशनल्स. व्हेन यू यूज the present simple tense in these kinds of situations, you sound more confident. You less have possibility of making mistakes. You are less judged and laughed.
सिंगिंग अ रैप सॉन्ग, जितने भी रैप सॉन्ग होते हैं ना वो 95% सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं। रिपोर्टिंग समथिंग टू समवन, जब किसी को कोई बात बतानी हो, फॉर एन एग्जांपल टीचर केम टू योर स्कूल, सॉरी योर क्लास, एंड ही आस्क्ड और सी आस्क्ड वेयर इज राहुल, देन यू से he is playing. No, you will not say that, although you can say that, but that will not sound professionally. You say he is absent. Yeah, definitely he is absent because he is playing. But in a language, because we follow a certain rules or certain courtesy, certain manner of talking, and that's why this may be a good thing. Again, it's not hard and fast but suggested. इंस्ट्रक्शंस एंड सोशल, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और रेसिपीज, जब किसी को कोई स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना हो। गिविंग डायरेक्शंस टू एन एड्रेस, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि ये 15 नंबर का हाउस या फिर नूतन चौक किधर है, तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्न लेफ्ट, देन टेक अ राइट, मूव अ लिटिल एंड देन यू सी दैट चौक, दैट स्क्वायर। दिस इज हाउ। या फिर किसी चीज को बनाने का, कोई खाना पकाने या चीजों के बनाने का रेसिपी आपको बताना हो तो स्टेप बाय स्टेप उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताइए। गिविंग डायरेक्शंस, इंट्रोड्यूसिंग अ थिंग और पर्सन, किसी पर्सन को आपको इंट्रोड्यूस करना है या किसी चीज को आपको इंट्रोड्यूस करना है कि दिस इज अ पेन, ही इज अजय, लाइक दैट। आस्किंग फॉर परमिशन, जब आपको किसी से परमिशन चाहिए उस सिचुएशन पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कीजिए। मे आई कम इन, कैन यू रिपीट इट, और मे बी सम मेनी मोर थिंग्स। डिस्क्राइबिंग समवन्स हैबिट, किसी का हैबिट अगर आपको डिस्क्राइब करना हो उस सिचुएशन में भी, ही ड्रिंक्स, ही लाव्स, ही स्लीप फॉर अ लॉन्गर, फॉर ऑलमोस्ट अ हाफ ऑफ अ डे, लाइक दिस। जो जब आपको किसी के हैबिट्स को डिस्क्राइब करना हो उस सिचुएशन पर भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कीजिए। प्रैक्टिस क्विज, तो चलिए अब हम प्रैक्टिस देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ही डैश टू द लाइब्रेरी एवरी वेंसडे, एवरी वेंसडे कुछ होता है और वो ही के साथ होता है या वो ही करता है। ही गोज to the library every Wednesday. The correct option is B, goes. Subject verb agreement, singular subject, singular verb, present simple tense. They dash usually dash late on weekends. They plural है, they do usually stay late on weekends. They does नहीं होगा, they do stays, क्योंकि यूजुअली के साथ वही सेम वर्ब प्लूरल में ही है तो स्टेस नहीं होगा, डज के साथ स्टे नहीं होगा। सो डेफिनेटली ए इज द करेक्ट आंसर। दे डू यूजुअली स्टे लेट ऑन वीकेंड्स। वाटर डेज एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज द डायरेक्ट आंसर, आई विल नॉट टेल यू। फोर्थ, dash your sister is dash English fluently. So definitely does. Why? Because sister is singular, but does के साथ हम plural verb speak लगाते हैं. So where is does and speak? Yes, C is the correct answer. Does your sister speak English fluently? Again, subject verb agreement. My previous video. My father dash in a blank. Sorry, my father dash in a bank. Works. My father singular. The train dash at 8 p.m. tonight. The train leaves. Just हमने practice किया. Hero dash the door and dash the villain. Hero opens the door and confronts the villain. Hero is a singular, इसलिए opens and confronts. Eighth, which sentence is grammatically incorrect? I believe you, I am believing you, I know the truth. B is the correct answer because B is incorrect. I am believing you गलत है, क्यों? क्योंकि जब हम किसी को कन्फेस करते हैं, अपने प्रेजेंट स्टेटस को जाहिर करते हैं, फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं
कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं। सो डेफिनेटली आई बिलीव यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, ये सही होगा क्योंकि प्रेजेंट स्टेटस में मेरा यही ही ट्रूथ है। इवन इफ ही डैश हिज बेस्ट द रिजल्ट डैश, इवन इफ ही ट्राइज तो सही है, सिंगुलर है इसलिए, द रिजल्ट रिमेन, द रिजल्ट रिमेन्स, सो डेफिनेटली tries and remains, the result is again singular। रिजल्ट में मतलब रिजल्ट ग्रुप में भी हो सकता है कि रिजल्ट में दो तीन चीजें एक साथ आई हो, लेकिन फिर भी से रिजल्ट खुद में एक सिंगुलर है। 10 in 1526 बाबर डैश इंडिया एंड डैश invades India and founds, definitely A is the correct answer। The link पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये अमेजिंग है और थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि कभी कभी क्या होता है, पास्ट टेंस में होने वाले सेंटेंसेस भी प्रेजेंट सिचुएशन को, प्रेजेंट सिंपल के सिचुएशन को बता सकता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर मैं लॉटरी जीता होता तो मैं एक कार खरीदता। प्रेजेंट सिंपल टाइम है बट टेंस जो है वो पास्ट है। आई विश आई हैड अ कार टुडे, द सेम, इट्स टाइम वी वेंट होम, सपोज यू मेट हिम नाउ। बट अगेन कभी कभी प्रेजेंट टेंस में होने वाले सेंटेंसेस भी फ्यूचर को बता सकता है, फ्यूचर टाइम को बता सकता है। द ट्रेन लीव्स एट 8 PM, फ्यूचर 8 बजे छूटेगा। आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मैं उससे कल मिल रहा हूं। इफ इट रेन्स नेक्स्ट वीक, द मैच स्टार्ट्स एट नून। फ्यूचर टेंस पास्ट टाइम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्यूचर टाइम टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट के चीजों को बताते हैं। He would often sit there, they would play for hours, she will have finished by then, I would visit my grandma। These are the things that makes this again extremely crucial, because in present simple tense, for an affirmative sentence you have a structure of subject, then first or the fifth form of the verb and then object, but in negative sentence you have do or does before the verb। Are you understanding? So subject, then do, does, then not, then the verb। For an example, I do not like, and always remember with do, does and did we use always the first form of the verb। do, does, did, to हम के साथ और मॉडल्स के साथ हमेशा हर सिचुएशन में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव डू डस के साथ सब्जेक्ट है, देन अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्सक्लेमेटरी, इसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं। इंपेरेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगेन। And these are all the structures and examples of these structures। So मैंने आपको सिंटैक्स भी बता दिया, सारे सेंटेंसेस को आपको बोल बोल कर पढ़ना है। मैं थोड़ा सा समय बचाने के लिए इसको नहीं पढ़ रहा हूं, बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू रीड दिस थिंग्स। प्रेजेंट सिंपल फ्रीक्वेंसी मार्कर्स, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं फॉर एन एग्जाम्पल जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को बताता है, डेली, एवरीडे, वीकली, मंथली, एनुअली, वंस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर। या इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को बताता है, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, नेवर। या टाइम फ्रेजेस होते हैं ऑन मंडेज, ऑन वीकेंड्स या ऑन एवरी मंडे, इन द मॉर्निंग, एट नाइट, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली। इन सभी के बाद जो कुछ भी वर्ब होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा। आपको याद रखना है कि जब कभी भी इस तरीके के वर्ड्स सेंटेंस में यूज हो रहे हो, then we use the present simple form of the verb, frequency, indefinite frequency and time phrases। चलिए अब इसके हम करेक्ट यूजेज देखते हैं। I run daily, not I running daily। We meet weekly, not we weekly meet।
he pays rent monthly, sorry, he pays rent monthly. He pay rent monthly, not. It rains annually, not it annual rains. I go twice a year, not I go twice year. She always smiles. I always, sorry, not always she smiles. I usually walk. I am usually walking. They often visit. They do visit, often visit. Not. I sometimes rest. Not I rest sometimes. He rarely cooks. He doesn't really rarely cooks. Wrong. I never lie. I don't never lie is wrong. I work on Mondays. I work in Mondays. गलत है. In the morning. I read in the morning. I read at morning. गलत है. जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब पर्टिकुलरली मैं इस तरीके की चीजों को और आपको डिटेल में बताऊंगा. Owls hunt at night. Owls hunt in night. गलत है. He calls regularly. He calls regular. गलत है. It rains constantly. It constant rains. ये भी गलत है. So these are the correct uses. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए और खुद से एटलीस्ट दो एग्जाम्पल बनाइए. कभी कभी ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज सुन एज, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं. और जब कभी भी ऐसा हो तो सेंटेंस में ये जो वर्ड्स आए रहेंगे, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज सुन एज और बहुत सारे वर्ड्स इस तरीके से, अनलेस, तो उसके बाद का जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा. फॉर एन एग्जांपल, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव एट द स्टेशन. व्हाट? आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव एट द स्टेशन. व्हेन के बाद आने वाला मेन वर्ब कौन से में होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में. या फिर कहिए, इफ ही कम्स आई विल टीच हिम. या कहिए, before he goes, express your desire. After he speaks, I will let him know the reality. Until he study hard, he will not pass the exam. So these are all the examples. And this is how this entire video and the teaching on present simple tense concludes. And I assure you, you don't require anything more than this in the terms of concepts and content. You just require much more practice. That also I will be bringing in the coming times. This is all for today. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Chhattisgarh.